Hello, students. I hope you all are doing very well and preparing for your exams. Since your exam is approaching and you all have texted me and put your comments that you want the continued series of videos. So, since now the time framework is very less, so within that span, and I'm also keeping very busy these days. So, I have brought this video. In order to make you aware of the exam few strategies how you can appear for your exams and mm, how much you have to write in your answer, that part which I will be sharing in the end. Okay, and now we have to also focus on the theories of leadership part 2, which we had done in the, I think, the second part of video which I had shared where I was explaining you the theories of leadership. Okay, this would be the fourth video within that series, Political Communication and Leadership. I don't know if I have time or not, but please go through this video properly. Though the strategies for exam would not be in the slides form, so you have to listen very patiently what I am talking about, and accordingly you have to um, put it into practice for your a good scoring and being in comfort zone for your exams. And please don't panic. Okay, so this is the first batch of NEP, so all of us are expecting that you would be keeping patience and you would be going through whatever has been suggested to you by your teachers. Okay, so let us start with the continued third type of leadership, which is very important. And those who are watching this video for the first time, please connect it with the earlier videos. So this is the third type of video. Before that, we have done the behavioral theories as well. Okay, so the third is the contingency and the situational theories. The context in which a leader exhibits her or his skills, traits, and behavior matters because same style of functioning may not be suitable for different situations. Thus, the effectiveness of leadership also depends upon situations. अब कंटिजेंसी जो थ्योरी है सिचुएशनल सिद्धांत, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे कि स्थितियों के परिस्थितियां या स्थितियों के आधार पर जो भी नेतृत्व का आधार उत्पन्न होता है उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो वह संदर्भ जिसमें एक नेता अपने कौशल, गुण और व्यवहार को प्रदर्शित करता है मायने रखता है, क्योंकि कार्य करने की एक ही शैली विभिन्न स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। इस प्रकार नेतृत्व की प्रभावशीलता भी स्थितियां या स्थितियों पर निर्भर करती हैं। तो ये स्थितियों का सिद्धांत है। जिस तरह से परिस्थितियां या स्थितियां बदलती हैं, कॉन्टेक्स्ट बदलते हैं, सिचुएशन बदलते हैं, उस तरह से एक जो लीडर है, चाहे वो कॉर्पोरेट लीडर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो मॉरल लीडर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लीडर हो, किसी तरह का लीडर हो, what I personally feel that many times we try to limit the understanding of leadership or a leader just to political leader, but this should not be the real case, because political leader is not the only thing where we can narrow down our understanding, because we have leaders all around. Okay, I told you the breakups, so keep in mind while you are writing an answer, please don't narrow down your understanding to just the political context, since many of you must be having political science or coming from that background or social science background, so don't limit it and try to relate it, because this paper is, I told you, it is an interdisciplinary paper, and management people, they are also reading this theory, leadership theory in management also, so it has to be interdisciplinary and you can get examples from there also. So this theory views leadership in terms of a dynamic interaction between a number of situational variables. Variables here means the factors, or you can say the causes, like the leader, the followers, the task situation, the environment, etc. यह सिद्धांत कई लोगों के बीच एक गतिशील बातचीत के संदर्भ में नेतृत्व को देखता है,
स्थिति जन्य चर, चर यानी यहाँ पे कारक तत्व है, जैसे नेता, अनुयायी, कार्य की स्थिति, पर्यावरण इत्यादि। ठीक है। तो जो थर्ड ये आपका टाइप ऑफ लीडरशिप है वो है कंटिंजेंसी और सिचुएशनल थ्योरी। पहला आई थिंक इट इज ग्रेट मैन थ्योरी इफ आई रिमेम्बर, एंड द सेकंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द बिहेवियरल थ्योरी, राइट। सो द थर्ड इज द कंटिंजेंसी सिचुएशनल थ्योरी। ठीक है। अब हम चौथे पर आते हैं। चौथा है ट्रांजैक्शनल थ्योरी। ठीक है। नाउ इसे हिंदी में हम कहेंगे नेतृत्व के लेन देन का सिद्धांत। सो द ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इट वाज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय मैक्स वेबर. Max Weber, he was a sociologist, though we also read his authority, legal, rational, traditional, charismatic authority. इनके हम पढ़ते हैं, पर मैक्स वेबर बेसिकली एक सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं। तो इन्होंने 1947 he had discussed this theory, and it was later on developed by Bernard M. Bass in 1981. There are several assumptions that underline the transactional theory, which are as follows. अब क्या क्या है? People perform their best when the chain of command is definite and clear. पहला, workers are motivated by rewards and punishments. Obeying the instructions and commands of the leader is the primary goal of the followers. Subordinates need to be carefully monitored to ensure that expectations are met. Under this type of leadership, the leaders guide or motivate their followers. हिंदी में जैसा कि मैंने बताया कि लेन देन का सिद्धांत मैक्स वेबर द्वारा पहले दिया गया, फिर बाद में 1981 में बर्नार्ड एम्बास द्वारा विकसित किया गया। कई धारणाएं हैं जो लेन देन के सिद्धांत को रेखांकित करती हैं, जो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। आदेश की श्रृंखला निश्चित और स्पष्ट होने पर लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। दूसरा, कार्यकर्ता पुरस्कार और दंड से प्रेरित होते हैं। तीसरा, नेता के निर्देशों और आदेशों का पालन करना अनुयायियों का प्राथमिक लक्ष्य है। चौथा, उम्मीदों को पूरा करने के लिए अधीनस्थों की सावधानी पूर्वक निगरानी करने की आवश्यकता है। इसलिए हम कहते हैं कि नेतृत्व के लेन देन के सिद्धांत के तहत नेता अपने अनुयायी का मार्गदर्शन या प्रेरणा करते हैं। तो बेसिकली ये जो लीडर्स जो गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने फॉलोअर्स को, किस तरह से उस ट्रांजैक्शन मतलब हम किस तरह से उस चीज को प्रैक्टिस में लाते हैं, how we are bringing the idea of leadership into practice. This is what transactional theory is talking about. So we need to understand that when we are talking about leadership theories, हम जब theoretical बात करते हैं, तब हम जब उसको implement करते हैं, practice करते हैं, चाहे मैनेजमेंट में करें, चाहे कॉर्पोरेट जगत में करें, चाहे हम पब्लिक स्फीयर में करें, हम प्राइवेट स्फीयर में करें, हम जहाँ पे भी इसको हम कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये चीजें फ्लो करती हैं। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन थ्योरी में उस चीज को प्रैक्टिस में लाने की बात की जा रही है। लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पांचवा, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। सी स्टूडेंट्स, दो देयर मे बी in few books or in few reading articles, journal articles, you may find more types of leadership. But what I have talked about in my videos and in my PPTs, they are limited theories of leadership, and those theories of leadership which are mostly, you can say, discussed, and they are most important. They are the most important part of the theories. So I didn't add the other part also, though there may be other types and other subtypes also. There could be many things, but we have to just focus on the main things and not the other thing. So transformational theory, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, हिंदी में हम इसे परिवर्तनकारी नेतृत्व कहेंगे. दिस लीडरशिप इज ऑल्सो equated here means it is connected to an extent with the charismatic leadership, क्योंकि charismatic leadership में हम किस तरह से लीडर जो है बदलाव करते हैं अपने जो पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी है उससे. तो यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही गई है, तो इसलिए काफी हद तक सिमिलैरिटीज की बात की जा रही है इसमें और charismatic leadership में. Now, in order to bring transformation in the followers or employees' interest and reshape their capacity, one critical component that has been considered essential is the charisma of the leader. Now, how leader is acting and how he is trying to mold the people's viewpoint, their ideas, their ideologies, and it's very important. In this form of leadership, a leader inspires his followers
to transcend their own self-interest for the betterment of the organization. Transformational leaders pay attention to the development needs and concerns of the followers and inspire followers to give a new outlook for the old problems and thus motivate the followers towards achievement of the goals of the organization by giving them new perspective. According to Bass and Reggio, there are four dimensions to the transformational theory of leadership, and these types could be understood as idealized influence, या आप कैपिटल में लिख सकते हो II, inspirational motivation IM, intellectual stimulation IS, and individualized consideration IC. अब जब हम परिवर्तनकारी नेतृत्व की बात करते हैं तो यहाँ पे अनुयायियों या कर्मचारियों के हित में परिवर्तन लाने के लिए और उन्हें नया रूप देने के लिए क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक जिसे आवश्यक माना गया है का करिश्मा है नेता। नेतृत्व के इस रूप में एक नेता अपने अनुयायियों को अपने से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है, संगठन की भलाई के लिए अपने स्वार्थ। परिवर्तनकारी नेता भुगतान करते हैं, अनुयायियों की विकास संबंधी जरूरतों और चिंताओं पर ध्यान देते हैं और अनुयायियों को प्रेरित करना, पुरानी समस्याओं के लिए एक नया दृष्टिकोण देना और इस प्रकार अनुयायियों को प्रेरित करना संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें नया दृष्टिकोण देकर। अब यहाँ पे बॉस और रिगियो के अनुसार परिवर्तनकारी सिद्धांत के 4 आयाम हैं। नेतृत्व अर्थात आदर्श प्रभाव, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले आपको आइडियलाइज इन्फ्लुएंस बोला है, तो पहला जो है आपका वो नेतृत्व अर्थात आदर्श प्रभाव, फिर प्रेरणादायक प्रेरणा, बौद्धिक उत्तेजना और व्यक्तिगत विचार, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये आप इसके आधार पर अपने जो भी टाइप्स है ट्रांसफॉर्मेशनल थियरी ऑफ लीडरशिप, इसको आप समझ सकते हो। हिंदी में आपको थोड़ा सा वो हो जाएगा कि कई बार वर्ड्स जो हैं जब हम चेंज करते हैं तो मीनिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, पर समझना पड़ेगा। जब हम आइडियलिज्म की बात करते हैं तो आदर्श की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो प्रेरणादायक जो मोटिवेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं तो मोटिवेशन की हिंदी क्या हो सकती है, वो भी कई बार प्रेरणा ही होती है। बौद्धिक उत्तेजना इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, और लास्ट में है इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन दैट इज व्यक्तिगत विचार, ठीक है। तो इन चारों के माध्यम से आप ट्रांसफॉर्मेशनल थियरी ऑफ लीडरशिप समझा सकते हो और आप इसमें ये भी बता सकते हो कौन से थिंकर ने ये ट्रांसफॉर्मेशनल थियरी ऑफ लीडरशिप की बात की। हालांकि किताबों में कुछ फ्लो चार्ट्स भी बने होते हैं। जर्नल आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि लीडरशिप के लिए जर्नल ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से प्रकाशित होती है, वो आप इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में भी थोड़ा बहुत ट्रांसलेट कर सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आपकी रीडिंग लिस्ट के अंदर भी दिया गया है, ठीक है। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द important parts of the units, which part of the units which is more important, which you would be focusing on for your exams. Now see, the first unit, that is explaining political communication. Here you are reading the meaning, nature, scope, ठीक है, जिसमें से आपने कार्ल ड्यूश की थ्योरी पढ़ी है, उसके उनके लिमिटेशंस क्या हैं और पूरा जो उनका फ्लो चार्ट है, पूरा जो मॉडल उन्होंने दिया है, और इन जनरल भी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, नेचर क्या है, इसके क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। इसमें से आपका टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी आ जाता है जो जिस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। दूसरा जो है आपका यूनिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप अच्छे से कर लेना क्योंकि आपको बेसिक्स जो है वो बिल्ड करता है, दैट इज एक्सप्लोरिंग लीडरशिप, जिसमें यू हैव टू रीड द थियरीज। You please cover all the 5 theories which I have covered in the videos, and I have explained a lot about that. And apart from that, also the meaning and what exactly one mean by leadership. ठीक है, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप की परिभाषा इन जनरल भी, और कुछ स्कॉलर्स के लीडरशिप की डेफिनेशन आप दे सकते हो। तो पहला और सेकेंड यूनिट तो बिल्कुल आपको यू डोंट हैव टू लीव फॉर योर एग्जाम्स, keep in mind, because these are the two units which are really basic units for your exams which you need to know, ठीक है। तीसरा जो यूनिट है जिसमें एक्सपैंडिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप है, जिसमें मैंने काफी हद तक क्लास में जब बात की थी तो किस तरह से हम उसको रिलेट कर सकते हैं प्रैक्टिस में, कुछ फ्लो चार्ट से, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ एम्पेरिकल, जैसे कोई इंस्टीट्यूशनल सर्वे हो रहा है उससे रिलेटेड हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वोटिंग बिहेवियर, वोटिंग पैटर्न, या
कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया का किस तरह का क्या रोल है, लीडरशिप को भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि ठीक है, रिसर्च में किस तरह से लीडरशिप हेल्प कर रहा है। तो ये जो थर्ड यूनिट है, ये कई बार जो है बच्चों को थोड़ा सा लग सकता है कि डिफिकल्ट पार्ट है या कई जगह नहीं कवर हो पाया है, तो मे बी यू कैन लीव दिस थर्ड यूनिट टू एन एक्सटेंट, ठीक है। पर आप फोर्थ यूनिट तो बिल्कुल ही मत छोड़ के जाओ, क्योंकि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और लीडरशिप का जो है रिसर्च चैलेंजेस की बात करते हैं, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप। और इसमें ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। जो मैंने ये भी बोला था कि ये पेपर की बहुत सारी सिमिलैरिटी पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च वाले पेपर से भी है। तो उस पे मेरा एक प्लेलिस्ट बना है, पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च। उस पे आप पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, वोटिंग बिहेवियर क्या होता है, वोटिंग बिहेवियर के क्या वेरिएबल्स हैं, वोटिंग बिहेवियर के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, ओपिनियन पोल हम किसे कहते हैं, ये सब बेसिक चीज आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो आपको जब एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट्स आएंगे लिखने के लिए, 30 मार्क्स का थियरी पेपर होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी गेटिंग 4 क्वेश्चंस, आउट ऑफ दैट यू हैव टू डू एनी 3, and mostly it would be short note because you have only 30 marks, ठीक है। तो 4 में आप 3 करोगे और तीनों में 10-10 नंबर के होंगे, और एग्जाम में आपको जो टाइम मिल रहा है वो भी 1 घंटे का है मोस्टली। तो अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो दैट 20 minutes ओनली यू विल बी हैविंग फॉर योर ईच आंसर। मैंने हर बार बताया है कि शॉर्ट नोट्स जब भी हम अटेम्प्ट करें 20 मिनट से ज़्यादा हम ना दें, क्योंकि फिर आपका रह जाएगा। और आप 200 से 250 वर्ड्स मैक्सिमम लिख सकते हो विथ ऑल द पॉइंट्स यू नीड टू कवर, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स और कैसे लिखना है, आंसर्स कैसे लिखना है, उस पर काफ़ी वीडियोस बने हैं, हाउ टू राइट अ गुड आंसर इन पॉलिटिकल थ्योरी। देयर आर मेनी वीडियोस स्टूडेंट्स, यू कैन गो एंड वॉच दैट, and you can clear your doubts regarding this, because of paucity of time and there are many things which is simultaneously going on at home and others also. So though I am keeping in tune with whatever you are sending, and I'm trying my level best to help you out in ways which is possible for me. See, I have discussed with you which part you can, first, second and the fifth part, fourth part, sorry, एंड द फिफ्थ पार्ट जो है ना, वो आपके आउटकम्स पे है कि ये पूरा पेपर का आउटकम क्या है। जैसे सिफोलॉजी एज एन आर्ट एंड कल्चर, तो ये पूरा एक पॉलिटिकल बिहेवियर की बात करता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करता है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी आप पढ़ सकते हो, सीजीपी में एक कॉन्सेप्ट है राजनीतिक सहभागिता का, कॉन्सेप्ट क्या है वो आप पढ़ सकते हो। और मैंने आपको बताया कि वोटिंग बिहेवियर से वो कनेक्टेड है। फ्यूचर में ये पूरा जो पेपर है किस तरह से आपके लिए जो प्लेसमेंट कर सकता है या क्या फ्यूचर आउटकम्स ला सकता है जिससे आपको फायदा हो आपके एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में, इंटर्नशिप वगैरह में। तो मोस्टली फिफ्थ यूनिट इज टॉकिंग अबाउट द विजन विच दिस पेपर इज गोइंग टू बिल्ड अक्रॉस। सो आई डोंट थिंक यू वुड बी गेटिंग अ क्वेश्चन ऑन दैट the fifth unit, though you can keep your fingers crossed and try to cover at least 3 units which I told you properly, so that, because you may have only one choice. I'm not pretty much 100% sure about anything, it's just my suggestions which I have brought for you. So in order to help you out, because things may change and things may vary unless and until you have a question paper on your hand. Okay, so all the best for your exams, and do well. I think you have paper on 13th. This paper, no, I think it's on 10th. So all the best, and you can put your comments. I will try to revert back. And there is one major query which came out, which is regarding the notes which you all are sending. Sorry, it won't be possible for me. And the second thing is the reading. See, while you are referring the syllabus of the paper, you may find the readings below. ठीक है, उनमें से 2-3 रीडिंग्स तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीली डाउनलोडेड है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कि लीडरशिप एज एन आर्ट का जो 2 रेफरेंसेस दिया गया है आपके सिलेबस के अंदर, those books they can be easily डाउनलोडेड। मैक्सवेल की जो किताब है वो भी डाउनलोड हो सकती है। दूसरा, आप किरण प्रसाद की किताब अगर आप चाहो, अगर आपकी लाइब्रेरीज में है तो आप मंगवा सकते हो। किरण प्रसाद पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इंडियन एक्सपीरियंस 2 वॉल्यूम्स में आती है। ये आपको प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव दे देगा पूरा पेपर का, ठीक है। इससे आप वो आप कवर कर सकते हो। तीसरा, आप एंड्रे हुवुड की पॉलिटिक्स आती है, उसमें भी कुछ सेक्शंस हैं इसके लीडरशिप के और कुछ हद तक जो कम्युनिकेशन के,
that you can do it is in English medium only, so that also you may refer. And there are many journals. I told you about the Journal of Political Communication, which is being published by the London School of Political Science and Economics. You may refer it. It would be there online. So, and then एक और मैंने बात की थी प्रतिमान का, CSDS से प्रकाशित होती है हिंदी में, लोकनीति से। चुनाव नामा, चुनाव पे काफी उनके आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, जो चीजें आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीली पढ़ सकते हो। तो I don't think there is dearth of material, there is dearth of thing, but the thing is you should have the right guidance. So right guidance, I'm trying to help you out through that. So please try to follow it and search it online. You would be getting it. Okay. Thank you. God bless you.